आज का अपना टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। व्हाट इज SEM? Search engine marketing refers to marketing of products and services offered by website on the internet. When internet users search for something on the internet through a query in search engines, various advertisements that match the keyword are displayed exact to the search results. These advertisements are paid and generally referred to as sponsored results or ads. The website that rank higher and are shown based on their ranks are called organic result, जिस पर sponsor mention नहीं होता है. The ads that are displayed alongside the organic results are charged by the search engine. Every time a user clicks these ads, a charge is incurred. These are also called as PPC. In short, इसको हम बोलते हैं पेपर क्लिक. SEO versus SEM. In SEO, a website owner cannot determine or specify how or where their website should display in the search result. In SEO, it's totally dependent on the algorithm of search engines and how they rank the website. They can only optimize the website depending on crawling and indexing for optimized result. But in the other way, in SEM, the site owner can determine and specify the position of their ads. They can fully control the text of the ads, their position and ranking that they want to spend on the ads based on PPC. The tools provided by various search engines for ads or sponsor listing are as follows. Google AdWords आपके पास एक टूल होता है जिसके हेल्प से आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर ऐड रन करते हैं. एंड बिंग एड्स एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल होता है जिसकी हेल्प से आप बिंग के ऊपर अपने एड्स रन करते हैं. सेटअप करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट अपने अकाउंट सेटअप करना है, देन अपने कीवर्ड रिसर्च करना है, देन अपने एड्स क्रिएट करना होता है, फिर अपने बजटिंग एंड बिडिंग पर आना है, टारगेटिंग लोकेशंस कि आप कहाँ का ऐड रन करना चाह रहे हैं, ऐड को शेड्यूल करना कि भाई 24/7 चलेगा या वीक डेज में चलेगा या वीक एंड में चलेगा, डेज में होगा कि नाइट में होगा, 24 आवर्स चलेगा या फिर आपने स्पेसिफिक आवर्स में रन करना है. मॉनिटरिंग कैंपेन्स ROI एनालिसिस. ROI स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितना इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट हमें क्या ROI मिल रहा है इस चीज़ का. गूगल provides AdWords as a tool to create ads which will be displayed in Google search results. To create an ad in Google AdWords, a Google account is required. If you already have a Google account, log in through Gmail account. So create a campaign. First you have to create campaign, then inside the campaign you have to create ad groups, and inside create ad groups you have to create ads. क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऐड लाइव करते हैं ना, तो सिंगल ऐड लाइव नहीं करते, हम लोग हमेशा A और B दो ऐड लाइव करते हैं, फिर उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं 2 वीक्स तक कि कौन सा ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है. अगर B A से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो A को हम लोग बंद करेंगे और एक नया ऐड B के अगेंस्ट लॉन्च कर देंगे, और अगर A अच्छा परफॉर्म करे तो B को हम लोग 15 दिन के बाद बंद करके एक नया ऐड बना देंगे. और ये प्रोसेस जब तक वो कंपनी अपना ऐड चलाती है वो चलता रहता है बिना रुके. क्योंकि अगर आपने एक ही ऐड बनाया तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे या डिसाइड कर पाओगे कौन सा आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा दे रहा है. तो जब तक आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा. और गूगल क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है यूज़र्स के साथ. कभी आपका कोई डिफरेंट ऐड दिखाएगा, कभी कोई डिफरेंट ऐड दिखाएगा.
जिससे इसको ये पता चलता है कि लोग इंटरेस्ट किस तरह के ऐड में आपके शो कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है जो प्रैक्टिकल करेंगे अब। इसी तरह से बिंग एड्स आर शोन ऑन याहू एंड बिंग सर्च इंजन्स। टू क्रिएट an ad in Bing, sign up with Bing either using your Microsoft account or create a new one. After signing in, you get the options to create a campaign. You can also import the campaign created in Google AdWords. So steps for creating a new campaign in Bing. So यहाँ पर भी process almost same ही रहता है. Select create a new campaign options, a screen to create an ad and set the campaign is displayed. After creating the ad, select the keywords and specify the settings for the campaign. Social media marketing. To utilize and encash the popularity of social media, companies are also using these platforms to market and create advertisements. जैसे कि Facebook. Facebook is a widely used platform for advertising. The campaign in Facebook allows an advertiser to choose an objective. After selecting the appropriate objective, the campaign can be created. Objective क्या होता है, जैसे कि आप किस लिए उस प्लेटफॉर्म पर आए, सेल्स के लिए, लीड के लिए, अवेयरनेस के लिए, साइट पर ट्रैफिक के लिए, वीडियो पर व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको ऑफर किए जाते हैं और उसी के बेसिस पर आप फिर इनको चूज़ करते हो। SEM refers to paid advertisements on search engines, generally referred by as PPC, pay per click. तो ये सारे प्रोसेस हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो SEO का जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे कि किस तरह से अपने काम करना होता है। देखिए, दो तरह की वेबसाइट होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग भी पढ़ के आए हैं। अगर डायरेक्ट हमारे डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट होते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ वर्डप्रेस आना काफ़ी होता है, और अगर हमने वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दोनों सीखा हुआ है तो हमें दोनों प्लेटफॉर्म पर ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से काम होता है। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब कोई साइट बन जाती है आपको अपनी साइट को गूगल को बताना होता है विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में ये देख सकते हैं, जैसे कि कार के अंदर डैशबोर्ड होता है, इन द सेम आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ से हम लोग अपनी साइट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसलिए यहाँ पर मुझसे पूछेगा नहीं क्रेडेंशियल्स वगैरह के बारे में। आप अपने जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं। अब देखो, दो तरह से काम हो सकता है। एक कि भाई हम पर्सनल अपना काम कर रहे हैं, एक हो सकता है क्लाइंट का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आप क्लाइंट के मेन अकाउंट से अपने आप को यूज़र बनाओगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी जैसे वर्डप्रेस में हमने समझा था कि एडमिन हो सकता है, एडिटर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें देखी थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें उस तरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखोगे यूज़र सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और सेटिंग्स पर आएंगे, यूज़र एंड परमिशंस। तो यहाँ से हम कोई नया यूज़र अपनी प्रॉपर्टी में बना सकते हैं। जैसे कि इस अकाउंट को मैं ऑन करता हूँ, इसलिए इस पर लिखा है ऑनर और वेरीफाइड। अगर मुझे किसी और पर्सन को इसमें यूज़र बनाना है तो उसका वैलिड जीमेल अकाउंट, और परमिशन में मुझे बताना पड़ेगा ऑनर, फुल या रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे तो वो जो काम टास्क आपने असाइन किया वो सिर्फ वही करेगा, ना तो कोई नई प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर पाएगा, ना ही इस प्रॉपर्टी को डिलीट कर पाएगा। लेकिन एडिट से रिलेटेड वो सारे काम कर सकता है, ऑनर के राइट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से अकाउंट बनाकर काम करना होता है। कभी भी किसी का ना ओरिजिनल अकाउंट मत लो। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फुल अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं, क्लाइंट भी भरोसे के साथ दे देता है, लेकिन कल को आपसे कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। सो बेटर इज़ कि आप अपने आप को यूज़र बनवाएं उसके अंदर। इससे क्या होगा कि कल को अगर उसको लगता है कि भाई आपके साथ उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, कोई और बेटर एजेंसी उसके पास है, तो वो आपको वहाँ से ईजिली हटा सकता है। ठीक है, बट मेन अकाउंट कभी नहीं लेना चाहिए किसी का। ठीक है, कल को किसी तरह की अननेसेसरी लायबिलिटीज़ आपके ऊपर बन जाए, भी एक्सेस किसके पास है जी, आपके पास है, चाहे गड़बड़ उन्हीं के अकाउंट से हुआ हो। तो इस तरह की सेफर साइड में हमें चलना चाहिए हमेशा।
ये तो अकाउंट में यूज़र कैसे बनता है। हम वापस आएंगे यहाँ पर, यहाँ से प्रॉपर्टी ऐड की जाती है। मेरे पास सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। आपके पास ऐसा नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्ट ऐड प्रॉपर्टी आएगा। अगर प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं तो डिलीट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। नीचे आप देखेंगे रिमूव प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप देखोगे robot.txt, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई इस अकाउंट के ऊपर कोई robot.txt अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर होती तो आपको यहाँ पता चलती। क्रॉल स्टेट्स 4 बार रिक्वेस्ट गई है, ओपन रिपोर्ट करके आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट वगैरह सब पता चल जाएंगी। कोई अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो आपको पता चलेगा। होस्ट स्टेटस एकदम बढ़िया आ रहा है आपका इसके अंदर। तो ऐड प्रॉपर्टी शायद मैंने आपको ये वाला करके दिखाया था अरीना साइट के नाम से, अरीना टेस्ट साइट, यस यही मैंने आपको शायद करके दिखाया था। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसका साइट मैप। तो ये प्रॉपर्टी हमने बनाई थी इसके अंदर। तो आज हम लोग एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे इस तरह से। तो जो भी अकाउंट आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो बनाइए एक अकाउंट, आप इन्फिनिटी फ्री पर ही बना सकते हैं। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 3 अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो जो भी अकाउंट आपको लगता है कि यहाँ पर यूजलेस है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। डीएक्टिवेट, क्लिक ऑन अकाउंट्स, डीएक्टिवेट, थोड़ा टाइम लेता है इसको क्लियर करने में। तब तक के लिए मैं एक और डिफरेंट पे ले सकता हूँ, जैसे कि हाइपर पीएचपी। यहाँ से साइन अप करेंगे। अच्छा, इसमें हमारा कैप्चा कोड नहीं आता है, बट मेरे इस पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसी के साथ जाएंगे। स्टार,
तो सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पर मेन जो डोमेन है अरीना पीबी वो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। आपको अपना एक सब डोमेन यहाँ पर क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डोमेन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा सब डोमेन, और जो भी अपना नया डोमेन यहाँ बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अरीना सॉफ्टेक्स चूज़ किया है, एंड क्रिएट पर क्लिक किया हमने, तो ये हमारा सब डोमेन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब सब डोमेन आपका क्रिएट हो जाए तो फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बन जाना चाहिए। ये देखिए arenasouthex.html5.me, और ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है डायरेक्टरी। तो हम इसको चला के देखेंगे। तो ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर न्यू डोमेन इज एक्टिव, यू कैन नाउ यूज एफटीपी। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अकाउंट अपना बन चुका है, एक्टिव भी हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप कि हमें इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर अपने गूगल में आएंगे, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे और इस तरह से आपने डिफाइन करना अपना यूआरएल एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी आपको अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करेगा। जैसे कि आप फाइल के बेसिस पर अपना कर सकते हैं, यानी कि इसको डाउनलोड करिए और अपने रूट पर अपलोड कर दीजिए। आप एक मेटा टैग भी लगा सकते हैं, इसको भी समझते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं सेफर साइड के लिए, और इस फोल्डर में यहाँ पर हम लोग एक वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। तो जैसे एक ही बिल्कुल स्टैटिक टेम्पलेट हम लोग ले रहे हैं सीखने के लिए, इसको छोटा करके देखें क्या ये रिस्पॉन्सिव वगैरह है या नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिव वाला तो खैर नहीं है, कोई और हमें ढूंढना होगा जो रिस्पॉन्सिव भी हो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो सीखने के लिए काफ़ी है हमारे लिए। तो हमें यहाँ से क्या करना है, ये दो फाइलें जो है वो अपलोड करनी है अपने इसमें। तो यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आप देख रहे हैं इसको आप डिलीट करेंगे, और ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देंगे। अभी जो हम लोग प्रोसेस सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं एक स्टैटिक साइट के लिए। तो यहाँ पर कुछ आ गया कि भाई आपका कोटा जो है वो एक्सीड हो गया है और द फाइल अपलोड वाज ब्लॉक्ड बाय सिक्योरिटी। अच्छा, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कौन कौन से इमेज हमारे रह गए हैं। जैसे बैनर हो गया, चेक सिंबल हो गया, फेसबुक, फ्लिकर, फुटर, हेडर, पोर्टफोलियो 1 2 3 4। तो एक एक करके डाल के देख लो अगर चला जाता है तो, क्योंकि फ्री जो होस्टिंग होती है वो आपको रिस्ट्रिक्टेड रखती है ताकि आप मिसयूज़ ना करें उनकी प्रॉपर्टी का। दैट्स व्हाई। अब हम
इस डोमेन पर रीलोड करके चेक करते क्या यहाँ पर वेबसाइट आ चुकी है अपनी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ वेबसाइट हमारी लाइव है इस वक्त। और ये हमने अपनी सेफर साइट के लिए अपनी गूगल की फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया है। आज मैं आपको दिखाता हूँ HTML टैग के बेसिस पर हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करें। तो मैं यहाँ से टैग को किया कॉपी, अपनी प्रॉपर्टी में आएंगे, यहाँ से पेज को करेंगे एडिट और हेड सेक्शन में हम यहाँ पर अपना गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड ऐड करेंगे और यहाँ से आप इसको करेंगे सेव करने के बाद अब यहाँ पर आके जिस बेसिस पर आपने किया है उसी बेसिस पर वेरीफाई अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ओनरशिप इज वेरीफाइड, गो टू प्रॉपर्टी। तो ये देखिए हम लोग अपनी इस प्रॉपर्टी में आ चुके हैं, ठीक है, arenasofttext.html5.me। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि गूगल में अगर आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना चाहते हो तो पहले अपना साइट मैप बनाओ। फिलहाल हमारी वेबसाइट में एक ही पेज है, कोई बात नहीं। तो एक वेबसाइट होती है स्मॉल SEO टूल्स के नाम से। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। थोड़े साइट स्लो परफॉर्म करती है बट सही चल जाती है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक वेबसाइट और सर्च करेंगे हम लोग, XML साइट मैप जनरेटर, और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लेना है, यहाँ लाके कॉल करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो देखो उसने स्कैन किया हमारी वेबसाइट को, उसको एक पेज मिल गया वहाँ पर। तो ये एक पेज का एक XML साइट मैप देखो हमारा बन गया। आप व्यू साइट मैप पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको, ये आपका साइट मैप आ गया। इसको भी उठा के हम लोग अपने इसको क्लोज कर दीजिएगा यहाँ से और यहाँ पर अपलोड कर दोगे। साइट मैप के बाद एक हमें चाहिए होती है robot.txt फाइल, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएगी देखने के लिए। क्लिक करिए, यहाँ ये यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में साइट मैप का URL बताएंगे। यहाँ लिखिए sitemap.xml। तो देखो इतने सारे बॉट्स होते हैं, गूगल का इमेज, गूगल का मोबाइल के लिए, MSN जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है, याहू का आपको मिल जाएगा, याहू के ब्लॉग्स के लिए, आस्क के लिए मिल जाएगा, गीगा ब्लास्ट। आप यहाँ पर सबको क्या करना चाहते हो, अलाउड या रिफ्यूज़, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नो डिले, यानी कि जब भी हमारी वेबसाइट में कोई भी एक्टिविटी हो, हरकत हो, तो हमारा ये पार्ट अपना जो है वो क्या कहते हैं, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करें और एल्गोरिदम को इन्फॉर्मेशन जाए। अब हमें ये डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसको एडिट कर लेंगे। हम नहीं चाहते हमारे इसमें ये लिखा हुआ है कि कहाँ से हमने जनरेट किया है। सेव करेंगे और इसको भी हम अपने रूट पर लाके यहाँ अपलोड कर लेंगे। तो बेसिक जो फॉर्मेलिटी है वो हमने अपनी कंप्लीट कर दी है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से आप पेज को एडिट करेंगे। पेज का टाइटल है सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा, तो ये एक अनोनिमस है, ठीक है, यानी कि हमें नहीं पता भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो किस चीज़ के लिए आपने बनाया वो आप यहाँ जाके इसका एक टाइटल वगैरह जो है वो डिफाइन कर सकते हो। हमने इसको सेव किया यहाँ पर। 60 से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
रिलोड करेंगे तो टाइटल देखो यहाँ पर आपका अपडेट हो गया है, और इसमें आप देख सकते हैं आगे कोई ट्रिपल डॉट वगैरह नहीं आ रहा है लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है, गूगल में आना है, साइट मैप में आना है, यहाँ पर आप लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल और यहाँ से सबमिट कर देना है। हो सकता है इमीडिएट सक्सेस आ जाए, हो सकता है रिफ्यूज़ कर दे आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है साइट मैप डॉट एक्सएमएल में अननोन, ठीक है, और एक एरर ये हमें यहाँ पर बता रहा है, साइट मैप कैन बी रीड बट हैज़ एरर, ठीक है। योर साइट मैप अपीयर्स टू बी एन HTML पेज, प्लीज़ यूज़ अ सपोर्टेड साइट मैप फॉर्मेट इंस्टेड। तो ज़रा देखना पड़ेगा भाई इस साइट मैप के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार और ऐड करेंगे। www डॉट और लगा लेना। प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, प्रॉपर्टी में जाएंगे, साइट मैप पर क्लिक करेंगे, एंड सबमिट। तो आप देख सकते हो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये सक्सेस हमें रिटर्न कर रहा है इसके अंदर। तो आपको दोनों डालने होते हैं, www के साथ भी और विदाउट www, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक पर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो गूगल वेरीफाई करता है, क्योंकि फ्री होस्टिंग है तो फ्री वाले में आपको www के साथ जाना पड़ेगा, अगर पेड होती तो आपका विदाउट www में काम हो जाएगा। तो हमारा साइट मैप जो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, सक्सेसफुल है, डिस्कवर पेज में सिंगल पेज आ चुका है, काम अपना ठीक है यहाँ पर। अब जब आपका ये पेज बन जाता है तो यहाँ पर आपके स्टैट्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें कैसे काम करेंगी या हम कैसे पता लगाएं कि कितने लोग हमारे पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। तो बेसिक काम आपका हो चुका है, गूगल को पता चल चुका है कि इस नाम से कोई एक वेबसाइट है, उसमें नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं। अब गूगल अपने आप उसको इंडेक्स करना स्टार्ट करेगा। अगर ये URL गूगल में इंडेक्स हो गया है, ठीक है, अभी इंडेक्स हुआ नहीं है, अगर हो गया है तो यहाँ पर ये लिखने पर आपको पता चलेगा कि भाई आपकी वेबसाइट इंडेक्स हुई या नहीं हुई। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स नहीं हुई है, बट अगर इंडेक्स होती तो क्या होता है, आपका URL यहाँ पर मेंशन हो जाता है इस तरह से। तो फिलहाल अभी हमारा URL हमें यहाँ पर रिटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ये 24 से 48 घंटे का टाइम लेता है इस चीज़ के लिए, और फिर आपका पेज यहाँ पर दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये साइट बन चुकी है, लाइव है, साइट मैप भी बन चुका है, robot.txt भी अवेलेबल है, मिस अभी इंडेक्सिंग बाकी है। और क्या क्या काम हमें करने पड़ते हैं, ये तो हो गया गूगल में प्रॉपर्टी इन्फॉर्म करने के लिए। इसके बाद आपको आना होता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल के एनालिटिक्स में आने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करनी होती है, ठीक है।
अकाउंट या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेम क्या रखना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं इसलिए रख रहा हूँ ऐसा ताकि मुझे इजीली याद रहे कि मैंने किस चीज़ के लिए बनाया है। और आज डेट है 8। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लीड का ट्रैकिंग कर पाएँ, सेल्स को ड्राइव कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ वेब और ऐप के ट्रैफिक को, इंगेजमेंट किस तरह से हो रहा है, रिटेंशन किस तरह से हो रहा है, वो सब चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप इसमें जाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाती हैं आपकी, ठीक है? तो इसलिए इनको ऑन रखिएगा। तो चूज़ प्लेटफॉर्म हम वेब पर करना चाह रहे हैं। वेबसाइट का आप नेम बताएंगे यहाँ पर। वेबसाइट का नेम डाल दो। क्या क्या चीज़ आप कर पाओगे? पेज के व्यूज़, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड लिंक्स। क्लास चल रहा है यार, अभी क्लास चल रहा है। आप बैग रख के चले जाओ, अभी क्लास चले। ऐसे क्लास में बिना पूछे नोक करे अंदर मत आओ। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट। तो जैसे हम लोग ये करेंगे तो आपको एक गूगल का कोड मिलेगा। क्या लिखा है कि इसको आपने अपनी वेबसाइट में ऐड कर लेना है। कहाँ लिखा है? इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट डू नॉट ऐड मोर देन 1 गूगल टैग टू ईच पेज। नहीं तो आप पेज को कंफ्यूज करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोड को हमने यहाँ से किया कॉपी, अपने कोड में आएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड क्लोज। इंस्टॉलेशन को टेस्ट करेंगे। अगर हो चुका होगा तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। क्लिक ऑन कन्फर्म। आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग चुकी है। ये हमने देखो स्ट्रीम का नेम बना दिया कि कब हमने बनाया था, इस तरह से। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल ये पार्ट आपका हुआ कंप्लीट। कंटिन्यू टू होम और यहाँ पर ये देखो हमारी यहाँ पे कहीं प्रॉपर्टी बन के आई होगी 94। ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगर इस पर कोई ट्रैफिक है, ये चल रहा है, तो हम रियल टाइम में इसको यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है और आपको आइडिया लगेगा इस चीज़ का। तो जितना मैंने किया है अभी के लिए आप इतना पार्ट कीजिए। वीडियो में लाइव कर रहा हूँ यूट्यूब पर, देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।